So I will start with all these contents. So I will at first I will talk about the introduction part, then why we go for PostgreSQL, then look and fill of PostgreSQL, then features, then what is database, then what is schema, what is table, what is views, and then how we write queries in PostgreSQL, then some conditional based query, some clauses, and then joins. I will cover only the basic parts of PostgreSQL. If some more will be needed, then I will come with another PPT. So let's start with the introduction part. So what is PostgreSQL? So before starting with what is PostgreSQL, already you know now PostgreSQL is a database. So at first we all have to know what is database. So any of you is knowing what is database? So then you can speak. Collection of data. So collection of data, okay, somewhat extent it's right. Then if collection of data is a database, then why can't we store data in a table? We can collect data in table also now. So why database? Why not table? Okay, I will tell you. So what is database? Actually, database is a is a logical representation of data. So if I'm talking about database, then it is a collection of table, indexes, sequences, metadata. All these things, if we are referring now, then it comes to database. And if we are talking about table now, then table is a only two-dimensional structure, rows and columns. Well, if we are talking about rows and columns, then it's a table. But if we are talking about tables, sequences, triggers, indexes, metadata, all these things in a whole now, then database comes into the picture. So I can give you the real example. Suppose we all are living in India. So suppose if someone says now where do you live, so why we say okay I'm living in Bangalore, I'm living in Delhi. Why not India? That's what the database came into the picture. क्या होता है ना कि जब आप इंडिया एज ए होल बोलते हो, देन व्हेन वी से ना इंडिया एज ए होल, तो क्या होता है, तो हम लोग फिर डिस्टिंग्विश क्यों करते हैं स्टेट वाइज, सिटी वाइज, रीजन वाइज? वाई? क्योंकि क्या होता है ना हमारे हम उस डेटा को अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर हम एज अ होल बोले ना तो वो डेटा बेस होता है। और उसको अगर आप पार्टीशन कर देते हो, लोअर हायरार्की पे आ जाते हो, देन इफ वी डिवाइड कंट्री इनटू रीजन्स, देन स्टेट, देन सिटी, तो क्या होता है वो टेबल्स आ जाता है। तो इस तरीके से आप समझते हो। अगर आपको कोई बोलता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड टेबल्स, तो टेबल वी कैन स्टोर डेटा इन both the format. Okay, in database also we are storing data, and in table we are also storing data. But in table only we are storing data in rows and columns. But in database, apart from storing tables, we can also store indexes, sequences, triggers, even data about data. So that is called metadata. तो तो ऐसे डेटाबेस और टेबल्स का डिफरेंसेस होता है। अगर मैं आपको एक तरीके से और बताऊं, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बुक। तो बुक अगर होता है तो बुक में वन बुक कंटेंट्स मल्टीपल पेजेस। तो अगर आप बुक को डेटाबेस लेते हो तो आप पेजेस को टेबल ले सकते हो। तो क्या होता है, आपका बुक एक डेटाबेस हो गया, देन पेजेस विल बी वन टेबल, एंड देन वन पेजेस कंटेंट्स मल्टीपल पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स को आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स ले सकते हो। कॉलम्स मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम्स, देन ऑल द कॉलम्स आर पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर मैं फील्ड भी बोल रही हूँ तो उससे आप क्या समझ रहे हो, नेम हो गया आपका एक फील्ड, देन आपका एड्रेस इज अनदर फील्ड, देन एज इज अनदर फील्ड। सो ये सब फील्ड हो गया। और उसमें जो आप डेटा इंटर करते हो, अगर मैं बोलूँ फील्ड नेम, तो अगर मैं नेहा हूं तो मेरा नाम नेहा, तो मैं नेहा इंटर करूंगी अपने नेम पे। तो ये क्या हुआ, ये आपका आपने डेटा इंटर किया, तो वो रोज में आप स्टोर कर रहे हो। तो आपका अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से सोचो, देन बुक विल बी ए डेटाबेस, पेजेस विल बी योर टेबल, पैराग्राफ्स विल बी योर columns, and then words in the paragraphs will be your data. तो ये होता है। फिर अगर आप बुक के ही एग्जांपल को अगर सेकंड सिनेरियो में जाते हो तो क्या होता है, इफ सपोज वी हैव indexes in the book ना, so at the first page we have indexes. Okay, chapter 1 contains this introduction part, chapter 2 contains this part. So suppose we want to go to chapter 8, तो हम लोग क्या करते हैं, we go to index page, and then we directly, okay, chapter 8 page number 236, and directly we go to page number 236 for that relevant data.
तो सेम चीज क्या होता है ना, डेटाबेस में भी होता है, वही मैंने बोला ना, इंडेक्सेस। तो अगर आपको पता है कि इस इंडेक्स पे हमारा ये टेबल स्टोर है, बस हम इंडेक्स देख लेंगे, ओके हमको एम्प्लॉय टेबल चाहिए, वी डोंट गो फॉर डिपार्टमेंट टेबल, ओनली एम्प्लॉय टेबल वी वांट। तो क्या होगा, देन वी कैन यूज इंडेक्सेस। तो क्या होता है, अगर आप बुक के हिसाब से समझो तो जैसे आप कंटेंट्स या इंडेक्स का यूज करते हो रेलिवेंट पेज पे जाने के लिए, उसी तरह हम लोग इंडेक्सेस का यूज करते हैं डेटाबेस के लिए रेलिवेंट पेज पे डेटा को सर्च करने के लिए। अगर आप एक और कॉन्टेक्स्ट लो, सपोज बुक में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, हर एक बुक का, एवरी बुक हैज फिक्स्ड लेंथ एंड ब्रेथ ना, उसी तरह डेटाबेस में भी क्या होता है ना, फिक्स सेट ऑफ कॉलम्स होता है, कॉलम्स एंड रोज होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोज, तो रोज क्या होता है, रोज मतलब आपको हॉरिजेंटल हो गया, मतलब आप हॉरिजेंटल डेटा इंटर करते हैं, रोज मतलब क्या, इट्स अ हॉरिजेंटल लाइन। तो उसी तरह अगर आप बुक से देखो, बुक का ब्रेथ और डेटाबेस का रोज, अगर आप लेंथ देखो तो बुक का आपका लेंथ, तो डेटाबेस का कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स क्या होता है, इट्स अ वर्टिकल वन, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को वर्टिकली रखते हैं एंड देन रोज में डेटा इंटर करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड टेबल्स। ऑल्सो देर इज वन, और मैं एक और सिनेरियो दे सकती हूँ। सपोज अगर आपको बुक के पेज को टर्न, आपको पलटना है, तो क्या करते हो, आप टर्न करते हो पेज को। उसी तरह सेम थिंग, इफ यू वांट टू अचीव द सेम थिंग इन डेटाबेस, देन व्हाट यू विल डू, यू विल राइट क्वेरी। ओके, हमें अगर 15 पेज पे जाना, तो क्या कर, कोई ऑप्शन नहीं है बुक में मैनुअली, आपको हर पेज को पलट पलट के 15 पेज पे जाना होगा। बट इफ वी आर गोइंग फॉर डेटाबेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वहाँ पेज नहीं पलट सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे क्वेरीज लिखेंगे कि ओके सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वेयर, जो भी रो नंबर इक्वल टू 15 है, या जो भी कंडीशन पे हमें डेटा चाहिए वो लिखते हैं। तो दैट्स डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड टेबल्स। If you understood database, then comes into the picture now what is PostgreSQL. So PostgreSQL is also a database, but it is a open source. If I'm talking about open source, then it is free of cost, everyone can download it. An object relational database, it's not only the relational database and it's not only the object oriented database, it's a combination of two types of databases, object oriented and relational database. So what is relational database and what is object oriented database? So if I'm talking about relational database, so in relational database, what we are doing now, so we are storing data into different tables, and then we are linking those tables with the help of primary or foreign key. तो क्या होता है, अगर आपका कंपनी टेबल है कोई एक, और एक डिपार्टमेंट टेबल है, तो क्या होता है, आपके कंपनी में आपने सारे, एक एम्प्लॉय टेबल और एक डिपार्टमेंट टेबल है, तो सारे एम्प्लॉयज उस एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट होंगे। सपोज एम्प्लॉय ए इज वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय बी इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। तो क्या होता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक कुछ जो होगा वो आपका एम्प्लॉय टेबल में स्टोर होगा। अब आप बोलोगे वो तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में भी प्रेजेंट है, तो एम्प्लॉय दो टेबल क्यों किया, तो दो टेबल इसलिए किया क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेवेंट डेटा, उसका एज, उसका एड्रेस, हर कुछ जो होता है वो एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट, उसको हम डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते। डिपार्टमेंट में ओनली डिपार्टमेंट रेलेवेंट डेटा विल बी प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट। ओके, एम्प्लॉय ए इज वर्किंग इन this department under the supervision of this manager, so department related data will be present in department table, employee related data will be present in employee table. तो relational database कहाँ से आता है, relational database means होता है कि suppose हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा नेहा कौन से फील्ड में काम करती है, चलो टैबलू, तो अब कैसे किसी को पता चलेगा, वो एम्प्लॉय टेबल से जाके नहीं पता कर सकता। इफ यू गो टू एम्प्लॉय टेबल ना, देन ओके यू विल फाइंड ओके नेहा this employee ID and what is the age, what's the address, all these things you will find there, but you will not able to find which department I'm working. तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट टेबल में। बट कैसे जाओगे डिपार्टमेंट टेबल में, वहां पे आपको नाम वाम कुछ प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट टेबल में बस पता चलेगा। तो आपको कुछ तो लिंक चाहिए कि अच्छा, तो यहाँ फर्स्ट टेबल से यू हैव टू पिक समथिंग एंड देन यू विल add those thing into the second table to filter out the result. तो क्या होता है ना, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, आपका एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा नेहा किस में, क्लिक में काम कर रही है, टैबलू में काम कर रही है, टैलेंट में काम कर रही है, तो क्या करोगे आप, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी को लोगे, और वो एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी मस्ट भी प्रेजेंट रहेगा डिपार्टमेंट टेबल में। तो उससे एम्प्लॉय आईडी पे आप क्या करोगे ना, दोनों टेबल को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं मतलब आप
अगर आप नॉन टेक्निकल में बोलो तो लिंक करोगे दोनों टेबल को, तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, अच्छा एम्प्लॉय आईडी मैच कर जाएगा, नेहा कुमारी 1, अच्छा ये 1 और ये 1, मतलब अब देखोगे डिपार्टमेंट टेबल में, ओके ये काम करती है टैबलो में। तो इस तरह से ये रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि जब आप डेटा को स्टोर करते, फिर स्टोरिंग डेटा इनटू डिफरेंट टेबल्स एंड देन आफ्टर यू आर लिंकिंग दोस टेबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की, then relational database comes into the picture. then then it comes what is object oriented database. तो object oriented database क्या होता है ना, जब आप किसी भी चीज को, कोई भी एक एंटिटी को कोई भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो। आप बोलोगे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं मतलब क्या है, मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो, मतलब कि उसका एक पर्टिकुलर अपना क्लास होता है। जैसे आप C++ पढ़ते हो तो क्या होता है ना, हम एक वी आर मेकिंग पर्टिकुलर क्लास, सपोज चलो हमने एनिमल क्लास बनाया और उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है, एनिमल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, तो एक डॉग हो गया, कैट हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया उस क्लास का। तो क्या होता है ना, पोस्टग्रेस क्या करता है, वो कुछ कुछ चीजें जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेता है एंड देन समथिंग फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस, और इस तरीके से वो अपने आप वो एक हाइब्रिड अप्रोच हो जाता है। व्हेन यू आर कंबाइनिंग टू डिफरेंट और वन और मोर देन डिफरेंट डेटाबेसेस ना, देन इट्स कॉल्ड अ हाइब्रिड अप्रोच। सो पोस्टग्रेस इज अ हाइब्रिड अप्रोच एंड इट्स अ ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनल डेटाबेस कॉम्बिनेशन। तो ओपन सोर्स मतलब क्या, फ्री है सब कुछ करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसीलिए है क्योंकि some of the features of object oriented programming is being implemented in postgres, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, बहुत सारा होता है ना, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, अगर तो कुछ कुछ चीजें जो है ना इसके अंदर इनबिल्ट है postgres, इसलिए हम लोग इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। एंड रिलेशनल क्यों, क्योंकि हम लोग वी आर स्टोरिंग डेटा इन द टेबल्स, in the views, that's why it's a relational, and then we are linking both the tables and multiple tables, इसलिए relational database भी है। So everyone is clear why Postgres is object oriented and relational database? Guys, please respond to Neha. Otherwise, there is no use of conducting this session. Please be ready with your questions. Wherever you feel you have some doubt, please ask her. So now comes why we are going for PostgreSQL. What's difference between MySQL and PostgreSQL? So first point I already covered. Now it's an object-based relational DBMS. It supports MVCC. Actually, it's supporting multi-version concurrency control. So what is MVCC? So MVCC में क्या होता है ना, MVCC का मतलब होता है अगर आप एक पॉइंट में, सपोज मैं कोई डेटा को फिल्टर आउट कर रही हूँ, ओके मुझे इस मंथ में जितने ट्रांजेक्शन में मुझे इस मंथ के का डेटा चाहिए, सो आई विल राइट क्वेरी इन PostgreSQL टू फिल्टर आउट रिजल्ट्स फॉर दिस मंथ ओनली। हम मुझे पिछले मंथ का नहीं चाहिए कि एक साल का नहीं चाहिए। और तभी क्या होगा ना, उसी पॉइंट ऑफ स्टेट पे कुछ डेटा क्या होता है इंटर हो रहा है। मान के चलो हमारे डेटाबेस में क्या है, ट्रांजेक्शनल डेटा है, तो क्या होता है डेटाबेस अपडेटेड होते जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं 1 घंटा अभी जो डेटा 100 रोज प्रेजेंट है, बट आफ्टर 1 आवर इट मे बी 200 रोज, इट मे बी 300 रोज, इट मे बी 50 रोज ऑल्सो। तो सारे कुछ रोज हो गया जो डिलीट, मतलब काम खत्म हो गया तो डिलीट कर देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। बट ये जो है ना मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल क्या करता है, सपोज इस पॉइंट पे मैं डेटा देखना चाहती हूँ, तो क्या होगा, अगर मान के चलो साथ साथ में अपडेशन भी हो रहा है डेटा का, तो मुझे गलत डेटा मिल सकता है। तो मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल व्हाट दिस कंसेप्ट इज डूइंग ना, तो अगर मैं अभी का अगर अभी मैं ट्रांजेक्शन करूं, अभी मैं क्वेरी लिखूं ना, तो ये क्या करता है, मुझे कुछ घंटे पहले का डेटा देता है, ना कि अभी जो अपडेशन इंसर्शन और डिलीशन चल रहा है बैकएंड में, वो डेटा मुझे नहीं देगा। इट विल गिव सम प्रायर आवर डेटा। तो क्या होता है कि तो मुझे गलत डेटा मिला ही नहीं, मुझे 1 घंटे, ठीक है मैं अभी एक क्वेरी कर रही हूँ, मुझे जस्ट अभी का डेटा नहीं मिला, बट इट विल गिव यू हाफ एन आवर और 15 मिनट बिफोर डेटा। इट विल नॉट गिव यू करंट डेटा। क्या होता है ना कि अभी अगर मान के चलो अभी मैं कर रही हूँ, आज के डेट में मान के चलो मुझे 100 रिकॉर्ड्स आया, लेकिन 5 एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ दिया, वो अपडेट हो रहा है, तो अभी मुझे क्या 95, अगर मैं अभी क्वेरी करूँ तो मुझे 95 रिकॉर्ड मिलता, बट जरूरी नहीं है। मुझे क्या मिलेगा, हो सकता है कि फिर 2 एम्प्लॉय तक मैं ज्वाइन ही कर जाए सेम एम्प्लॉय, तो मुझे गलत डेटा मिल जाएगा। अगर मैं अभी के डेटा को जाऊं तो ठीक है 95 रिकॉर्ड मुझे मिला, बट जस्ट क्या होगा 2 मिनट बाद 2 एम्प्लॉय फिर से आके ज्वाइन कर लिया, कुछ भी ऐसा डेटा में हो जाए, तो क्या होगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसीलिए MVCC जो होता है ना, ये आपका कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन होता है
टू गिव यू एक्यूरेट डेटा। ठीक है, अभी मुझे प्रेजेंट का डेटा नहीं मिला, लेकिन 15 मिनट कुछ भी ट्रांजेक्शन होने से जस्ट पहले का डेटा वो देता है। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है और वो कमिट नहीं किया, कमिट का मतलब क्या होता है ना, आपने फुल्ली बोल दिया हाँ ये ट्रांजेक्शन हो गया, अब हो गया, इसके आगे कुछ मैं मॉडिफाई नहीं करूंगा, तो वो कमिट होता है। तो अगर आपने वो कमिट नहीं किया ना, तो कभी भी वो डेटा मुझे अगर दूसरा यूजर क्वेरी कर रहा है, इट विल नॉट गिव दैट डेटा, इट विल गिव डेटा प्रायर टू 15 मिनट्स, हाफ एन आवर ऑन 1 आवर। तो ये एमवीसीसी होता है, ताकि आपको एक्यूरेट डेटा मिल पाए। और क्या होता है ना, पोस्टग्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को ऑल्सो सपोर्ट करता है। तो जैसे कि आपका नॉर्मल तो हम लोग बोलते ही है ना कि इंटीजर हो गया, आपका कैर हो गया, ये सब अदर, फिर आप अपने से भी डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हो पोस्टग्रेस SQL में। ये एरेज को भी सपोर्ट करता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है पोस्टग्रेस का, ताकि यूजर सेलेक्ट कर पाए पोस्टग्रेस SQL। नेक्स्ट आ रहा है ये डायग्राम, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। Okay, so on the top hierarchy, database is there, under that schema is there, and then under schema object is there, and someone from outside is accessing. So if we talk about database, schema, and then schema object, what's difference between database, schema, and then schema object? Anyone can tell what's difference between database and schema? We can have multiple schema under one database. Yes. Schema is the structure of database of a table. Yes. Okay, so डेटाबेस अगर मैं बोलूँ ना, तो डेटाबेस अगर आप एकदम हाई हायरार्की में जाते हो ना, अगर आप कोई हायरार्किकल, अगर आप सोचते हो कि आपके ग्रैंड पेरेंट है, फिर पेरेंट है, फिर आप हो, फिर आपके बच्चे हैं, तो क्या होता है ना, डेटाबेस एकदम टॉप हायरार्की में होता है, देन उसके अंदर स्कीमा होता है, और उसके अंदर हम टेबल्स को रखते हैं। तो डेटाबेस अगर मैं बोलूँ, तो डेटाबेस अगर आप जाओ, तो आप अगर अपने कॉलोनी के हिसाब से, अपने कॉलोनी के हिसाब से जाओ, तो कॉलोनी जो हुआ वो आपका, इट विल बी अ डेटाबेस, योर हाउस विल बी अ वन स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या हुआ, स्कीमा मतलब लेआउट हुआ, मतलब पर्टिकुलर, मतलब एक कॉलोनी के अंदर कम से कम 100 या 150 या 200 कितने भी घर हो सकते हैं ना, हाउसेस हो सकते हैं। सो डेटाबेस इज अ कॉलोनी। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखो, स्कीमा विल बी योर ओन हाउस, और उसके अंदर क्या होता है, टेबल्स। जैसे स्कीमा ऑब्जेक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब टेबल्स। तो अंडर द स्कीमा वी आर पुटिंग द टेबल्स। तो टेबल्स क्या हुआ, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल में देखूं, तो मैंने बोल दिया कॉलोनी जो हुआ आपका डेटाबेस हो गया, आपका घर जो हो गया स्कीमा हो गया, देन टेबल्स। व्हाट इज टेबल्स? तो टेबल्स क्या हुआ ना, जो आपके घर के अंदर का कितना, मान के चलो आप 3 BH के लिए, इफ वी आर ऑप्टिंग फॉर 2 BHK 1 BHK, तो ये सब क्या हुआ है कि आप सोच सकते हैं कि एक टेबल हुआ। ओके, मेरा घर जो एक स्कीमा हुआ, और मेरा 3 BHK, तो 3 टेबल्स हुआ। ओके, मैं एक को मास्टर बेडरूम बनाऊंगी, एक को गेस्ट रूम बनाऊंगी, एक को किड्स रूम बनाऊंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आप सोच सकते हो। अगर आप इस अलग भी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, तो अगर एक आप कंपनी को सोचते हो डेटाबेस, तो स्कीमा क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हुआ ना, वो आपका एक एक स्कीमा हो गया। ओके, फाइनेंस डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट HR डिपार्टमेंट, ये सब इट्स वन स्कीमा। एंड देन टेबल्स क्या हुआ उसके अंदर, अब उसके अंदर भी बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी तो इम्प्लॉय होंगे ही, तो इम्प्लॉय एक टेबल हो गया। अब आप उससे रिलेटेड, इम्प्लॉय से रिलेटेड बहुत कुछ हो सकता है, कि आप अगर सैलरी अलग टेबल एक बना के रख दो, तो वो भी क्या हुआ, एक टेबल हुआ। So then database on the top hierarchy, database will be there. Under database, schema will be present, and under schema, tables will be present. नया टेबल्स स्कीमा नहीं होगा? नहीं, स्कीमा नहीं होगा। स्कीमा के अंदर आप टेबल्स को रख सकते हो, मैं ये बोल रही हूँ। डेटाबेस अगर मैं वही बता रही हूँ ना, डेटाबेस अगर आपका एक कॉलोनी हुआ, तो घर क्या हुआ आपका घर एक स्कीमा हुआ, और नंबर ऑफ रूम्स जो हुआ ना, वो आप टेबल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। मतलब अगर आप सपोज, चलो मैं, आप अगर इस एग्जांपल से नहीं भी समझ पा रहे हो, तो मैं बता रही हूँ। अगर आप सोचो कि आपने डेटाबेस बना के रखा है पोस्टग्रेस डेमो का, ठीक है, उसके अंदर स्कीमा आपने बना लिया, स्कीमा 1, स्कीमा 2, स्कीमा 3, स्कीमा 4। अब स्कीमा 1 के अंदर आप रखना चाहते हो बस फिनेंस के रिलेटेड टेबल्स, बस फिनेंस के रिलेटेड डेटा, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि स्कीमा 1 का एक्सेस जिसको आप दो, वो IT वाले ना देख सके, उसको आप चाहते हो। तो क्या करोगे, आप एक ही स्कीमा के अंदर रख दोगे, सबको देख पाएगा, अनटिल और अनलेस आप टेबल का प्रिविलेज ना रखो। तो क्या होता है ना, एक स्कीमा के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स रख सकते हो, बट आप अगर चाहते हो कि कुछ चीजें शो और हाइड वाली चीज होनी चाहिए, ओके, फिनेंस वाले IT के डेटा को ना देख सके, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक डेटाबेस एक ही रखूंगी, स्कीमा 2 डिफरेंट बना लूंगी, एक में फिनेंस को रख दूंगी, एक में IT को रख दूंगी। तो स्कीमा और टेबल है ही, स्कीमा और मैं कहाँ बोली, स्कीमा और टेबल एक ही चीज है। आप एक स्कीमा तो बस एक लेआउट होता है, आपके बॉडी का स्केलेटल जो है वो आपका स्कीमा हुआ।
बट आप क्या हुए, आप एक टेबल में। ओके, नाउ कम्स इनटू द फीचर्स ऑफ PostgreSQL। तो PostgreSQL इट्स अ फ्री डाउनलोड टूल। फिर क्या होता है ना, ये आपका बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। देन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ भी इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ये सब के साथ ना पोस्टग्रेस का इंटीग्रेशन आ गया है। तो इसीलिए अभी क्या हुआ है ना, बहुत डिमांडिंग हो गया है पोस्टग्रेस। फिर क्या होता है ना, कॉम्पेटेबल विद डेटा इंटीग्रिटी। अब आप बोलोगे डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, कॉम्पेटेबल तो वो समझ में आ रहा है, बट डेटा, व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है ना, कि आपके डेटा में बहुत सारा, आपके अगर आपका ट्रांजेक्शनल डेटा है, सपोज सब तो ट्रांजेक्शनल डेटा ही होता है ना। अभी आप इसमें 95 या 100 आदमी प्रेजेंट इस इन्विटेशन में थे, बट प्रेजेंट कितने, बहुत कम प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, तो ये क्या हुआ कि हमारा जितने टोटल 95 या 100 पीपल थे, बट प्रेजेंट हम लोग 30 to 35 ही हैं। तो क्या होता है ना कि डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है ना, वही एक्यूरेट वो नहीं दिखाएगा 95 प्रेजेंट है हम लोग, क्योंकि जितने एक्चुअली 35 ही प्रेजेंट या 40 है वही बताएगा वो डेटा। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है ना, कि आपके डेटा के कंसिस्टेंसी और कंकरेंसी को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको गलत डेटा नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुत जरूरी होता है every database must support data integrity. Why data integrity? To bring out data consistency and data concurrency, data integrity came into the picture. Then मैंने आपको बोला, और फिर क्या होता है ना, जैसे ही मैं आपको बोली कि PostgreSQL is a object relational database, तो relational database क्या होता है, मैंने बोला कि टेबल जो होता है वो relational हो गया, लिंकिंग जो करते हो आप। तो सिक्वल क्या है, सिक्वल जो एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। माई सिक्वल अगर मैं बोलूं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो क्या है, वो रिलेशनल डेटाबेस पे काम करता है। तो इसीलिए क्या होता है, सिंस पोस्टग्रेस इज अ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस, तो इसलिए ऑब्वियसली ये कुछ फीचर्स माई सिक्वल का लेगा, क्योंकि क्या है, ये तो हाइब्रिड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी और रिलेशनल भी है। दैट्स व्हाई इट्स रिटन सपोर्ट्स मल्टीपल फीचर्स ऑफ सिक्वल। फिर क्या होता है ना, सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा टाइप्स, ये भी मैं बता चुकी हूँ। मल्टीपल डेटा टाइप्स मतलब कि नॉर्मल तो सब डेटा टाइप है ही ना, इंटीजर विंटीजर जो भी आपका है, बट क्या होता है ना, अगर आप हायर उस पे जाओ तो आपका क्या होता है, ये यूजर बेस्ड भी सपोर्ट करता है, एरेज भी सपोर्ट करता है, तो ये सब एडवांस में होता है। तो पोस्ट के उन सब चीजों को भी सपोर्ट करता है। फिर अगर मैं बोलूँ कि हाईली एक्सटेंसिबल है, रिलायबल एंड सिक्योर है, तो ऑब्वियस है इतने सारी चीजें MVCC को सपोर्ट कर रहा है आप, तो इसीलिए क्या होता है ना, ये बहुत सिक्योर्ड भी माना जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें लॉकिंग पे बेस्ड होती है। अगर मैं लॉकिंग बोलूँ तो आप लोग बोलेंगे लॉकिंग क्या होता है, मतलब लॉकिंग क्या होता है ना, कि सपोज आप अगर मान के चलो, आप अगर कोई एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मान के चलो आप कुछ अपडेट कर रहे हो अपने डेटा में, चलो आपका एज हो गया 20, आज के दिन आपका बर्थडे हुआ, एज हो गया आपका 1 साल इंक्रीज हुआ, देन वो डेटाबेस मस्ट बी अपडेटेड कि हाँ चलो 25 था अब 26 हो गया। और क्या होता है, मैं उसी वक्त देख रही हूँ, मैं मान के चलो मेरी सैलरी जो है मुझे इंक्रीमेंट मिल गया, तो क्या होगा, मेरी सैलरी भी अपडेट हो रही है। तो एक ही टाइम पे क्या हो रहा है, 2 एक्शन परफॉर्म हो रहा है डेटाबेस पे। या मान के चलो मेरी ही आज ही के दिन बर्थडे और मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हुई आज ही के दिन, तो क्या होगा, मेरे ही रो पे 2 चीज अपडेशन होगा ना, एक तो मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हुई, दूसरा मेरा एज बढ़ा। तो क्या होता है ना कि आपका तो क्या होता है ना, वो जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो 1 by 1 होता है, मतलब कि मेरा एज फर्स्ट बढ़ेगा इधर, नहीं तो एक साथ नहीं हो सकता आके तुरंत में लिख दिए तुरंत में नहीं, जब भी आपका ट्रांजेक्शन होगा वो क्या होगा, 1 by 1 होगा। ओके, फर्स्ट वो सैलरी को इंक्रीज करके दिखाएगा, फिर एज, वो इतना सडन होगा आपको पता नहीं चलेगा। बट क्या होता है, बैकएंड में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग क्या होता है ना, ये कोई पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होता है कि हम यहाँ पे भी लिख दिए यहाँ पे, ये सीरियल एग्जीक्यूशन होता है। और क्या होता है ना, अगर मैं आपको इतना चीज ये पोस्ट के सपोर्ट करता है ना, MVCC ये सब सपोर्ट करता है, तो कहाँ से आपका डेटा इंटीग्रिटी ये सब जो सपोर्ट करता है ना, ये तो क्या होता है ना कि बहुत सारे रीजंस है व्हाई PostgreSQL इज बीइंग सपोर्टेड डेटा इंटीग्रिटी MVCC। एक आप एग्जांपल आप रियल लाइफ का भी ले सकते हो। सपोज आपके बैंक बैलेंस आपका 4000 है, चलो सपोज आपसे मैंने मांगा कि मुझे 1000 रुपये दे दो, देन what transaction will happen, 1000 rupees will be debited from your bank account and it will be added to my bank account। तो अब क्या होगा,
अब क्या होगा, तो एक साथ ट्रांजेक्शन क्या होगा, एक बाय एक होगा ना, कि आपके अकाउंट से पहले डेबिट होना है तब मेरे अकाउंट में क्रेडिट होना है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तब डेबिट नहीं होता है, क्या होता है, एक 1 by 1 होता है। तो इन सब चीजों का कंसिस्टेंसी बनाने रखने के लिए ना एमवीसीसी सपोर्ट करता है, डेटा वही एक्यूरेसी डेटा में लाने के लिए, कि हम सडन एक साथ सब कुछ नहीं कर, अगर ऐसा हो जाता कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो तब आपके अकाउंट से डेबिट हो, ये तो उल्टा ही प्रोसेस है। तो फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं से वो पैसा आपके अकाउंट से पहले नहीं कट रहे हैं, कहीं से तो मुझे मिल रहा है फिर आपके अकाउंट से कट रहे हैं। तो ये सब चीजें को हटाने के लिए क्या होता है ना, सीरियल एग्जीक्यूशन आता है, एमबीसीसी हुआ, डेटा इंटीग्रिटी हुआ। फिर आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, सपोज कि आपको 2 जन को पैसे देना है, मुझे देना है, किसी एक को भी, मुझे 100,000 देना है, उसको भी 500 देना है। तो अब क्या होगा, अगर दोनों साथ में ही हो जाए, अगर दोनों मान के चलो, तो क्या होगा, अगर आपके अकाउंट से डेबिट ही ना हो और हम लोग के अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाए, तो उसको क्या, अगर सही तरीके से हो तो मुझे अगर 1000 रुपीज मुझे मिल जाए तो आपके अकाउंट में 3000 बचेंगे, क्योंकि टोटली यू हैव 4000 रुपीज इन योर अकाउंट, वंस 1000 विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, तो आपके अकाउंट में 3000 बचेंगे। तो सेकंड बंदे को क्या दिखेगा, वो कि अच्छा इसके अकाउंट में 3000 है, बट मुझे क्या दिखेगा कि आपके अकाउंट में 4000 थे, और तब मुझे पता चला अच्छा 1000 दिया, इसके पास 3000, उसके बाद का प्रोसेस मुझे नहीं पता, आपने किसको दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सेकंड वाले को दिखेगा कि अगर साथ ही हो जाता तो क्या होता, दोनों को 4-4 हजार दिखता, एक ही टाइम पे मिलता होगा, ट्रांजेक्शन होता, तो सामने वाले को 40,000 से डेबिट होता, हमको जब 1000 देते और उसको भी 500 देते तो 40,000 से डेबिट होता। तो इन सब चीजों में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए और PostgreSQL इज सपोर्टिंग वेरियस फीचर्स, डेटा इंटीग्रिटी, एमवीसीसी, इवन एसिड प्रॉपर्टी भी ये फुलफिल करता है। तो एसिड प्रॉपर्टी, किसी को पता है एसिड प्रॉपर्टी, एनीवन इज नोइंग एसिड प्रॉपर्टी? हाय नेहा। हेलो। हाँ, एटॉमिसिटी, हाँ ठीक है, कंसिस्टेंसी, हाँ। इंटीग्रिटी और एक ड्यूरेबिलिटी। होता क्या है ये सब, एटॉमिसिटी क्या होता है, कंसिस्टेंस? एटॉमिसिटी तो कि एक प्रोसेस सिंगल वे में होगा, मल्टीपल होगा, मतलब जैसे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले डेबिट होगा, तो ये एटॉमिसिटी हो गया। कंसिस्टेंसी की पहले डेबिट होगा और फिर क्रेडिट होगा। इंटीग्रिटी अभी आपने बता दिया था। और ड्यूरेबिलिटी एक तरह से कि ड्यूरेबल है या नहीं है, कि मतलब हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा बताती हूँ क्या होता है ना, हर एक डेटाबेस, ये इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली PostgreSQL, PostgreSQL इज ऑल्सो सपोर्टिंग एसिड प्रॉपर्टी, बट सारे डेटाबेस एक्चुअली एसिड प्रॉपर्टी सपोर्ट करते ही हैं। तो जैसे उसने बोला ना, एसिड प्रॉपर्टी मतलब ए मतलब होता है एटॉमिसिटी, सी मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई मतलब होता है आइसोलेशन, या फिर इंटीग्रिटी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, डी मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी मतलब अगर आप वर्ड को भी तोड़ोगे ना, तो एटॉमिक मतलब क्या था, सिंगल होता है ना, एटॉमिसिटी मतलब क्या, सिंगल ऑपरेशन की वो बात कर रहा है। तो क्या होता है, बट ये नहीं होता है कि सिंगल ऑपरेशन बस हो जाए, एटॉमिसिटी का ये मतलब होता है, एटॉमिसिटी का मतलब वो नहीं होता है। आप अगर जो भी चेंजेस कर रहे हो, तो क्या होता है ना, जो भी चेंजेस डेटाबेस में हो रहा है, इधर ऑल चेंजेस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस और नॉट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ प्लस माइनस किया अपने अकाउंट में, प्लस वाला रिफ्लेक्ट हो जाए, माइनस वाला ना रिफ्लेक्ट हो, मतलब आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ बस वो रिफ्लेक्ट हो जाए, जो डेबिट आपने किया वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो, तो वो गलत हो गया ना। अगर आपके अकाउंट में 4000 रुपये है, आपने 5000 और आपने ऐड कर दिया, 9000 हो गया, बट आपने मुझे 1000 दिया भी, तो कायदे से 8000 विल बी योर करंट अकाउंट बैलेंस। बट क्या होगा, अगर बीच में ही आपका कुछ फेल्योर हो जाए सिस्टम, तो अगर बस वो अगर दिखा दे कि जितना क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट वाला तो दिखा ही नहीं, मतलब क्या, तो गलत होगा वो। इसीलिए डेटाबेस जो होता है ना, हमेशा एटॉमिसिटी को सपोर्ट करता है। क्योंकि यही सब दिक्कत ना आए, मतलब इनकंसिस्टेंसी डेटा में ना आए, गलत डेटा ना आए। तो क्या होता है, एटॉमिसिटी मतलब जितना भी आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव डन द चेंजेस ना, ऑल शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर डीबी, और else nothing will be reflected in your DB। जो पहले डेटा था उतना ही रह जाएगा। तो ऐसे आप एटॉमिसिटी को समझ सकते हो। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, कि मतलब वही आइसोलेशन में, मतलब मैंने बोला ना, एग्जांपल अभी दिया था कुछ देर पहले कंसिस्टेंसी का, कि अगर आपने 2 जन को आपको पैसे देने हैं, तो अभी मैं क्या बोली, एक आइसोलेशन में काम होगा, पहले इधर द मनी विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट फॉर मी और दैट गाय ना। तो क्या होगा, इधर पहले उसके 500 डेबिट हो जाएंगे, उसके लिए फिर 1000 मेरे लिए होंगे, और एल्स 1000 विल बी डेबिटेड फॉर मी एंड देन 500 विल डेबिटेड फॉर हिम और हर। तो वही होता है कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है ना, ट्रांजेक्शन का जो एग्जीक्यूशन होगा वो आइसोलेशन में हमेशा होगा, मतलब कि 1 by 1 होगा।
फिर आपका आता है आइसोलेशन होता है। मतलब क्या होता है, कभी भी पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होगा। वही मैंने बताया ना, अगर पैरेलल, आप बताओ ना, अगर पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि आप सोचो, अगर अगर मैंने बोला ना कि 1000 भी मेरी, 1000 भी आपने किसी को दिया, 500 भी किसी को दिया, अगर पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाए तो गलत फलत डेटा हो जाएगा। पहले 1000 कटेगा, फिर 500 कटेगा। अगर पैरेलल होगा तो हमको भी 4000 दिखेगा, आपका अकाउंट बैलेंस उसको भी 4000 दिखेगा। तो ये तो गलत है ना। इसीलिए बोलते हैं आइशो, मतलब वंस वन जॉब विल बी फिनिश्ड ना, देन आफ्टर अनदर जॉब विल बी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। तो क्या होता है ना, एक जॉब आपका फिनिश होगा तब दूसरा ट्रांजेक्शन, अगर मैं जॉब बोल रही हूँ मतलब ट्रांजेक्शन आप समझो, वन ट्रांजेक्शन विल बी फिनिश्ड, देन आफ्टर अनदर ट्रांजेक्शन विल बी कैरी फॉरवर्ड। और ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है ना, कि आपने अगर कुछ चेंजेस कर दिया अपने डीवी में, चलो आपने बोला, आपने आज अपडेट कर दिया कि हमारे कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं और दिस मंथ, मतलब ये मंथ तक 100 ही रहने वाला है, आपने चेंजेस कर दिया, या फिर आपने कोई एक नया पॉलिसी ला दिया, ठीक है, अचानक से सिस्टम फेल्यूर या कुछ तो हो जाता है, तो क्या होता है ड्यूरेबिलिटी, मतलब अगर आपका डेटाबेस ड्यूरेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो अगर बाय द वे आप कुछ काम कर, आपका सिस्टम फेल्यूर हो जाता है, किसी वजह से आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, तो वो चेंजेस हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है ड्यूरेबिलिटी, मतलब अगर आपने कमिट कर दिया ना कोई चेंजेस, कि अगर आज मैंने बोल दिया कि हाँ ये वाला पॉलिसी आ गया है, तो इट विल बी वैलिड, मतलब ये जा ही नहीं सकता, इसको आप रोल बैक कर ही नहीं सकते अगर आपने कमिट कर दिया। तो ड्यूरेबिलिटी ये चीज होता है, मतलब ड्यूरेबल हो गया वो। तो ये हो गया एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो ये सारी फीचर्स भी जो होता है ना, पोस्ट के सिक्वल सपोर्ट करता है। इवन सारा जितने भी क्वेरी लैंग्वेजेस है सब सपोर्ट करता है, बस पोस्ट के सिक्वल भी इसमें एक इस फीचर्स को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि इट सपोर्ट्स ऑल्सो एसिड प्रॉपर्टी। कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब वही डेटाबेस क्या होता है, अब मैंने डेटाबेस को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या डेटाबेस होता है। फिर क्या होता है ना कि अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हाउ यू क्रिएट डेटाबेस इन PostgreSQL। सॉरी, Yeah, Neha. Anybody else who have some query related to Postgres till now? Tableau team, Alteryx team, please ask your questions. Please go ahead, Neha. पोस्टग्रेस में अगर इफ यू वांट टू क्रिएट डेटाबेस ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेटाबेस का आइकन आता है, तो आप यहाँ पे क्रिएट में जाओगे और आप डेटाबेस में क्रिएट जाओगे, और फिर देन यू विल राइट ओके पोस्टग्रेस। चलो पोस्ट ये करके आप जो भी, अगर आपको कुछ लिखना है कमेंट लिख के आप सेव कर दोगे। तो ये आपका क्या होता है ना, PostgreSQL डेमो आपका क्रिएट हो, तो ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गया आपका आपके PostgreSQL में। तो बस कुछ करना नहीं होता डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, आपको डेटाबेस के आइकन पे जाना होता है, देन यू विल राइट क्लिक, देन यू विल गो टू क्रिएट एंड देन डेटाबेस। और क्या होता है, जो भी आपको डेटाबेस का नाम इंटर करना है तो आप नाम इंटर कर दो। देन कमेंट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो कि व्हाई यू आर मेकिंग दिस डेटाबेस, तो आप कुछ भी 1-2 लाइन लिख दो, ताकि बाद में अगर कोई आपका काम किसी और को मिले तो वो समझे अच्छा ठीक है ये डेटाबेस इसलिए क्रिएट किया। अभी ठीक है, अभी मैं डेमो दे रही हूँ, 2-3 डेटाबेस क्रिएट करके दिखाऊंगी, कोई मतलब नहीं रहता है। बट जहाँ पे 100 डेटाबेसेस हैं, तो कौन सा डेटाबेस, एक तो नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, तो हमें नाम भी वैसा ही रखना चाहिए डेटाबेस का, ताकि कोई अगर देखे तो कमेंट सेक्शन में जाके पढ़े भी ना कि क्या किस लिए ये डेटाबेस है, बट वो नेम से ही समझ में अच्छा ये डेटाबेस इसलिए क्रिएट हुआ है। तो वो नाम भी आपको बहुत तरीके से रखना होता है। तो ऐसे करके आप यहाँ सेव कर दोगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। फिर उसी तरह अगर आपको ड्रॉप डेटाबेस करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप जाकर वहां पे, यहाँ पे देखो ये क्या होता है ना, ये आपका क्वेरी का होता है, ये क्वेरी का डायलॉग होता है। अगर आप इसको क्लिक करोगे, पता नहीं इसको स्लो हो रहा है, एक सेकंड इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप आपका डेटाबेस और फिर डेटाबेस नेम लिख दोगे तो आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो वो हो गया आपका ड्रॉप। मतलब क्या होता है, आप पूछोगे ड्रॉप मतलब क्या होता है, तो ड्रॉप मतलब होता है ना,
और ड्रॉप मतलब होता है, सपोज आपने कोई एक डेटाबेस क्रिएट किया आज के डेट में, यू हैव क्रिएटेड वन डेटाबेस, बट आपको 1 महीने बाद लगा कि नहीं इस डेटाबेस का कोई यूज नहीं रहा, एक्चुअली में हमें कोई रेलिवेंट डेटा रहा नहीं उसमें, चलो जो भी था अभी हमें हमारे यूज का नहीं है, देन यू विल बी ड्रॉपिंग। क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर बहुत सारे डेटाबेस आप रखे जा रहे हो तो क्या आपकी मेमोरी को भी फुल कर रहा है ना, तो क्या होगा आपका, अगर मेमोरी फुल हो रही है तो आपका प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगा। तो इसलिए क्या करते हैं ना, जो चीजें हमें आज के डेट में रेलिवेंट लगती है या फिर इफ यू आर थिंकिंग ना कि फ्यूचर इट मे बी नीडेड, तो उस चीज को हम रखते हैं। अब हमें 10 साल पहले कौन सा एम्प्लॉय था हमें नहीं चाहिए डिटेल, अभी हाँ फिलहाल 5 साल पहले तक किसी एम्प्लॉय ने हमारे कंपनी में काम किया है और अभी जो फिलहाल प्रेजेंट में है। अब 20 साल पहले कोई मान लीजिए 100 साल पुराना कंपनी, हमको क्यों चाहिए, वो तो मर भी गया होगा शायद 100 साल पुराने जो एम्प्लॉय होंगे, तो उन सब का डेटा हमें क्यों रखना है। तो क्या होता है ना, वैसे वैसे, या फिर एक मैं एग्जांपल आपको दी, तो अगर वैसा कुछ रिक्वायर्ड डेटा आपको नहीं है आपके डेटाबेस में, देन यू कैन गो फॉर ड्रॉप डेटाबेस कमांड। तो अगर आप ड्रॉप कर दिए डेटाबेस को, मतलब कि आपका हर कुछ डिलीट हो जाएगा, मतलब वो डेटाबेस तो डिलीट होगा ही, उसके अंदर का डेटा सीक्वेंस अगर आपने डाला, इंडेक्सिंग अगर प्लेस किया है, सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। ड्रॉपिंग मतलब कि आप ड्रॉप मतलब होता है ना कि हम इस क्लास को ड्रॉप कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आप उस क्लास का आपका हर कुछ खत्म हो गया, अब आप नेक्स्ट क्लास का सब कुछ पढ़ाई करोगे, तो वही होता है। तो ड्रॉप मतलब हर कुछ से वो पूरा डिलीट ही हो जाएगा, मतलब आप डेटाबेस को डिलीट किया, उसके अंदर का टेबल, उसके अंदर का डेटा सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तो ये ड्रॉप डेटाबेस होता है। अब क्या है ना, वो स्कीमा मैं आपको बता चुकी हूँ, डेटाबेस के बाद स्कीमा आता है। तो व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज ए स्केलेटल, हाँ उसके अंदर आप टेबल्स रखते हो, तो टेबल क्या है, उसका डेटा होता है। और देन क्रिएट स्कीमा, स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ नहीं होता है, आप जाओगे इसमें कुछ भी आप देखो, अगर मैं जाऊँ ना यहाँ पे, तो ये स्कीमा, आप बस राइट क्लिक करोगे, क्रिएट करोगे एंड देन स्कीमा, यहाँ पे स्कीमा मान के चलो मैं लिख देती हूँ, कुछ भी मैंने माई स्कीमा पहले बना रखा है इसलिए माई स्कीमा। तो आपका क्या होता है ना, माई स्कीमा 1 देखो क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, अब एक तो मैं माई स्कीमा बना के रखी हूँ, माई स्कीमा 1 आई हैव क्रिएटेड, तो क्या होता है ना, मैं चाहूँ तो इसमें फिनेंस के डेटा को रख दूँ, इसमें IT के डेटा को रख दूँ, मैं अलग अलग चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। इसमें मैं चलो मैं 2 डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, अगर मैं अगर चलो टैब्लू के लिए भी काम करती हूँ, क्लिक के लिए भी काम करती हूँ, मैं इसमें टैब्लू से रिलेटेड डेटा रखूंगी, सब कुछ इसमें क्लिक से रिलेटेड डेटा रखूंगी। तो अगर मुझे टैब्लू वाले को कुछ देना रहेगा, पीपीटी या कुछ भी, या फिर कुछ एक्सेस देना होगा, मैं इस स्कीमा का बस एक्सेस दूंगी, इसका दूंगी ही नहीं। तो क्या होता है ना, एक तो क्या हुआ, आपका डेटा सिक्योर हुआ, दूसरा चीज क्या हुआ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। अब एक ही जगह आप सब कुछ रख दोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, फिर इसमें टाइम लगेगा, वो फिल्टर आउट करेगा, ओके टैब्लू, तो वो जाके टैब्लू वाले को फील्ड में जाएगा, फिर देखेगा, ओके फिल्टर में डालेगा, ओके टेक्नोलॉजी इक्वल टू टैब्लू, तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगी। अगर उन सब चीजों से बचना है तो हम डिफरेंट स्कीमा, विल क्रिएट डिफरेंट स्कीमा एंड देन विल पुट टेबल्स रेलिवेंट टू दैट स्कीमा। तो ये आपका हो गया स्कीमा। अब आपका टेबल्स आता है, तो स्कीमा के अंदर आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो टेबल जिसमें आप, टेबल इज अ 2-dimensional structure where rows and columns are present. In the columns we are keeping fields. If I am talking about fields, then name, आपका ID, then age, then salary, all these are fields. And then if we are talking about rows, तो जो आप डेटा एंटर करते हो ना, चलो नेहा हो गया, ID 1 हो गया, जो भी हो गया, टेक्नोलॉजी टैब्लू हो गया, ऐसे करके, तो वो सब आपका हो गया रोज हो गया। तो उसी तरह जैसे आप डेटाबेस को क्रिएट और ड्रॉप कर सकते हो ना, उसी तरह आप टेबल को भी क्रिएट और ड्रॉप कर सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि डेटाबेस को तो ड्रॉप करता हूँ, टेबल को क्या ड्रॉप करना है? तो टेबल को तब ड्रॉप करना है, सपोज आप नहीं चाहते हो कि ओके एक डेटाबेस में सपोज यू हैव 100 टेबल्स, आप चाहते हो ना डेटाबेस ना डिलीट हो, इस टेबल का मुझे कुछ काम नहीं है, तो हम, अगर आप, इफ यू आर गोइंग फॉर डिलीटिंग डेटाबेस ना, देन ऑल टेबल्स विल बी डिलीटेड ना। सो इफ यू वांट टू डिलीट ओनली द इंडिविजुअल टेबल, तो क्या होगा, तब आप क्या करोगे, ड्रॉप टेबल कमांड यूज करोगे। तो ड्रॉप टेबल कमांड में कुछ नहीं करना है, ड्रॉप टेबल नेम, तो क्या होगा आपका, वो टेबल डिलीट ड्रॉप हो जाएगा। एक मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखा देती हूँ। क्या होता है ना, देखो इसमें क्या है, आप, अब ये सिंटेक्स होता है क्रिएट करने का। क्रिएट तो आप समझ ही गए, क्योंकि आप टेबल को ही बना रहे हो तो क्रिएट तो लिखोगे ही वो, ठीक है। टेबल मतलब टेबल, आप क्या कर रहे हो, आप व्यू, आप कैसे डिस्टिंग, आप बोलोगे टेबल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें तो पता, हम कंपनी 1 टेबल ही बना रहे हैं। तो डेटाबेस कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि आप टेबल बना रहे हो, कि आप व्यू बना रहे हो, कि क्या बना रहे हो? तो इसीलिए क्या होता है ना, वो लिखना पड़ता है हमें कि हाँ ओके हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। हम आदमी, हम तो बना रहे, तो हमें पता ही वो टेबल है कंपनी 1, तो आप बोलोगे क्यों टेबल लिखे हो फिर यार? तो नहीं, डेटाबेस थोड़ी ना आदमी है, वो कैसे समझेगा, उसके दिमाग में कैसे आएगा
ओके ये बंदा टेबल बना रहा है कि व्यू बना रहा है। तो इसीलिए ये जो टेबल लिखते हैं ना या व्यू लिखते हैं ना, वहां पे एक्सप्लिसिटली हमें लिखना पड़ता है, वो डेटाबेस के लिए हमें लिखना पड़ता है। एंड देन देखो कंपनी नेम, जो आपका टेबल नेम है वो आप लिख रहे हो। देन क्या होता है, आपका जो फील्ड्स है, देखो आईडी फील्ड है, मेरा नेम है, एज है, एड्रेस है, देन सैलरी है। तो अब आपका आईडी है तो वो क्या मतलब, आईडी मतलब कौन सा डेटा टाइप है। अब अभी अगर आप डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो कोई आईडी में, अभी मेरा 1 2 3 से आपने आईडी रखा है, कोई आके एबीसीडी डाल देगा, तो क्या होगा, आपने कुछ डाला ही नहीं है कि वो इंटीजर टाइप हो। अगर इंटीजर टाइप आप डाल के छोड़ दोगे तो जैसे ही वो एबीसी इंटर करेगा वैसे ही उसे एरर आ जाएगा कि नहीं ये इंटीजर डेटा टाइप है, तुम सही से डेटा इंटर करो। तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि आप डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली मेंशन करो। ओके आईडी है तो हम चलो इंटीजर रखते हैं, या हमको कैरेक्टर ही रखना है, एबीसीडी में ही रखना तो कैरेक्टर रखेंगे। फिर क्या है ना, आईडी ही एक हमारा यूनिक कॉलम होता है। अब चलो मेरा जो एम्प्लॉय आईडी वो आपका थोड़ी हो सकता है, या मैं जब नहीं भी रहूंगी तो भी नहीं हो सकता किसी का, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है एम्प्लॉय अगर ऐड होते जाते हैं। तो क्या होता है ना, इसलिए उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। फिर आपने नॉट नल क्यों लिखा है हमने, नॉट नल मतलब कि आईडी को ऐसा नहीं है कि आपने एक एम्प्लॉय को ऐड किया और उसका आईडी को इंटर करना भूल गए। अगर आप नॉट नल नहीं लिखोगे तो अगर आप इफ यू विल नॉट इंटर एनी डेटा टू दैट रोज ना, तो वो कुछ नहीं उसे दिक्कत होगा। बट अगर आप नॉट नल स्पेसिफाई कर दोगे मतलब कि वो बोल ही रहा है डेटाबेस कि नहीं तुम्हें कुछ ना कुछ तो वैल्यू इंटर करना ही है, तुम खाली रख ही नहीं सकते उस स्पेस को। तो इसीलिए क्या होता है ना, जिस जगह पे आपको लगता है, कैसे होता है ना जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो कहीं पे भी तो हमेशा रेड एस्ट्रिक ऊपर में रहता है, बोलते हैं मैंडेटरी है, ये तुम्हें डालना ही डालना है, यहाँ पे कुछ डालो। अगर आप गलत भी डाल दो तो उसे क्या पता चलता है, मान के चलो अपना एज आप 30 के जगह 25 कर दो, उसको क्या फर्क पड़ा हुआ, बट उसको डेटा मिल गया ओके चलो हाँ कुछ तो एज है इस बंदे का या बंदे का। तो उसी तरह नॉटनल भी होता है, मतलब नॉटनल आपने डाल दिया मतलब उसको कुछ तो डालना पड़ेगा, गलत डाले सही डाले उससे मतलब नहीं, बट डालना पड़ेगा उसे। तो आपको कहीं पे भी अगर लगता है कि हाँ यहाँ पे ये फील्ड का वैल्यू नल नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉय इंटर करे, डेटाबेस में वैल्यू रहे, तो हम लोग नॉट नल एक्सप्लिसिटली लिख देते हैं। तो अभी मैंने सब में नॉट नल लिख दिया, नेम भी नेम देखिए टेक्स्ट किया हुआ, एज हुआ है, एड्रेस और सैलरी। तो कुछ नहीं, क्रिएट सिंटेक्स में कुछ नहीं होता है, क्रिएट अगर आप टेबल क्रिएट करें तो टेबल एक्सप्लिसिटली लिख दो, व्यू करे तो व्यू लिख दो, देन आपका टेबल का नाम लिख दो, जो जो आपके फील्ड्स हैं वो फील्ड्स लिख दो, उसके बगल में डेटा टाइप लिख दो। अगर जो आपका की है, मान के तो मेरा यहाँ पे आईडी की है तो हमने प्राइमरी की लिख दिया, और अगर आपको नॉट नल लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। लेकिन हाँ जो जिस फील्ड को भी आप की सपोज कर रहे हो ना, वहां नॉट नल लिखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा ना, वो तो फिर आपका कभी भी आप ज्वाइन वाइन करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, वहां पे डेटा ही नहीं रहेगा। अगर आप नॉट नल लिख दोगे तो सबको इंटर करना ही है डेटा। तो ये आपका हो गया। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके, इसको आप सेलेक्ट कर लो एंड देन आप एग्जीक्यूट कर दो। तो देखो क्या लिखा ना, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, ये आपका क्रिएट हो गया आपका। अब आता है पोस्टग्रेसक्यूएल व्यूज क्या होता है। अच्छा अभी तक किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, देन वी विल मूव टू पोस्टग्रेसक्यूएल व्यूज। अब आप बोलोगे व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड व्यूज। व्यूज क्यों है, टेबल तो है ही हमें डेटा देखने के लिए, फिर ये नया नाम कहाँ से बता रहे हो व्यूज। तो व्यूज क्या होता है ना कि सपोज चलो आपके टेबल में, मान के चलो आपके टेबल में 100 रिकॉर्ड्स है, 100 फील्ड्स। अगर मैं रिकॉर्ड्स बोलती हूँ देन इट इज फील्ड। तो चलो आपके टेबल में 100 फील्ड है, बट क्या है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको चाहिए, आपको किसी ने बोला, मान के चलो आपको दीप्ति मैम ने बोला कि नहीं मुझे बस तुम ना टैब्लो और क्लिक में जो जितने एम्प्लॉय है ना, जितने भी काम कर रहे हैं ना, जो कि 0 से 2 साल तक वाले हैं, हमको उतने ही का रिकॉर्ड दे दो। बस रिकॉर्ड में भी बस रेलिवेंट डेटा दो, उसका नाम दो, उसका एम्प्लॉय आईडी दो, उसका मेल आईडी दो, बस हमें यही 3-4 चीज की जरूरत है। मुझे उसके एड्रेस से क्या करना है, मुझे उसके एज से क्या करना है, अभी ट्रेनिंग पर्पज में उसको एज और एड्रेस क्यों चाहिए, है ना। तो क्या होता है ना, तब क्या होता है अगर ऐसा सब कुछ कंडीशन आता है ना, देन व्यूज कम इनटू द पिक्चर। अब आप बोलोगे व्यूज क्या है, व्यूज मतलब वही है, आप अगर आप व्यूज को नॉन टेक्निकल टर्म में समझो तो क्या होता है, आप कहीं रूम के खिड़की के पास बैठते हो तो क्या आपको पूरे चारों तरफ का व्यू मिल जाता है? नहीं मिल जाता है, क्योंकि बस खिड़की के बाहर जो दिख रहा है वो व्यूज आपको मिलता है। तो मतलब क्या एक पार्ट आपको दिखता है। अब अगर आप किसी कॉर्नर में खड़े हो तो किसी कॉर्नर से आपको एक साइड दिख सकता है, 2 साइड, सब सारा साइड तो नहीं दिख सकता है। तो मतलब क्या आप एक व्यू ले रहे हो, है ना। तो वही टेबल का कुछ पार्ट अगर आप अपने यूज के लिए निकालते हो तो उसे हम लोग व्यूज बोलते हैं। मतलब कि अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं एंड यू आर फिल्टरिंग आउट ओनली 3 to 4 रिकॉर्ड्स और 10 रिकॉर्ड्स और 50 रिकॉर्ड्स फॉर योर ऑन यूज और फॉर गेटिंग रेलिवेंट डेटा, देन व्यूज कम इनटू द पिक्चर। हमें नहीं चाहिए सारा टेबल। और दूसरे टर्म में भी क्या होता है ना, इस तरीके से भी अगर आप समझो तो व्यूज आता है, और दूसरी तरीके से ये भी होता है ना
कि मान के चलो हमारे पास बहुत सारा एम्प्लॉय का डेटा है, बट हम चाह रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ ना कि सारा एम्प्लॉय उस बंदे को ना पता चले। हम ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरे पास 100 रिसोर्सेस हैं, चलो हम कोई क्लाइंट पे हमें डिप्लॉय करना है, हमारे पास मान के चलो 50 टैबलो रिसोर्स है, बट हम चाह रहे हैं ना कि क्लाइंट को पता ही ना चले, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ क्रीम बच्चे अपने पास भी रखने के लिए। नहीं, सारा मैं उस क्लाइंट को दिखा दूंगी तो वो तो सबसे अच्छे बच्चे को ले जाएगा, फिर दूसरे जगह दिखाने के लिए हमारे पास ऑब्वियस उससे जो नीचे वाले वो सब बचेंगे। तो क्या करते हैं ना, बहुत सारे कंपनी फिल्टर आउट करते हैं, ओके सारा चीज हमें नहीं दिखाना है, तो कुछ कुछ चीजों को वो ओके ठीक है, हाँ मुझे लगता है इसको ये सब टैबलो में तो आता है, इस क्लाइंट पे ये फिट बैठ जाएगी या बैठ जाएगा, इसको यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय, जरूरी नहीं है उसको हर कुछ आता है। वो क्या होता है, वो ऊपर हायर मैनेजमेंट या आपके मैनेजर फिल्टर आउट करते हैं, इस क्लाइंट को ये रिक्वायरमेंट, इसको आता है ये सारी चीज, तो ये फिल्टर। तो क्या हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस से कुछ एक पार्ट को देख रहे हैं, कुछ एक कॉलम्स को देख के आपको फिल्टर आउट कर रहे हैं, तो वही व्यूज होता है। मतलब कि आप बड़े डेटा सेट से एक छोटा डेटा सेट को जब निकालते हो तो वो एक व्यूज होता है। तो समझ में आ गया व्यू क्या होता है, या कोई डाउट है? कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछ सकते हो। देन क्या होता है ना, पोस्ट केस सिक्वल क्वेरीज आता है। पोस्ट केस सिक्वल क्वेरी क्या होता है ना, आप बोलो अच्छा हाँ व्यूज कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। व्यूज में भी कुछ बनाना नहीं होता है आपका। देखो अभी मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। ये मैंने रखा हुआ है आपका एक स्क्रिप्ट है क्रिएट, जो मैंने आपको बना के दिखाया है, क्रिएट टेबल कंपनी का, ठीक है। इसमें मैंने कितने कॉलम्स भी, एक्चुअली आई एम टेकिंग आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी कॉलम। बट जब मैं व्यू बना रही हूँ ना कंपनी का, तो देखो मैंने एड्रेस को लिया ही नहीं है, ना ही मैंने सैलरी को लिया है। क्यों? मुझे नहीं चाहिए वो सारी चीजें। मुझे क्या, आईडी लिया है, नेम लिया है, एज लिया और फ्रॉम कंपनी कर दिया। तो इसका सिंटेक्स कुछ नहीं होता है। क्या होता है, क्रिएट व्यू, और जो व्यू नेम, वही मैंने बोला ना कि क्यों लिखते हो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ताकि डीबी को पता चल सके तुम टेबल क्रिएट कर रहे हो। देन उसी तरह क्रिएट व्यू, व्यू नेम, तो व्यू है बना रही इसलिए हमने व्यू लिखा, और कंपनी व्यू हमने अपने नाम से, आप कुछ भी XYZ व्यू लिख दो, ठीक है ना, वो लिख दो। एंड देन हम लोग क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग सेलेक्ट क्या कर रहे हैं अपने टेबल से, आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ सेलेक्ट लिखा है कि क्रिएट, ये तो हमने व्यू क्रिएट करे इसलिए ये सिंटेक्स है, क्रिएट व्यू और व्यू नेम। एज, एज मतलब क्या, अगर आप हिंदी में समझो एज मतलब क्या हो रहा है, मतलब उस टेबल की तरह मुझे चाहिए, जो क्यों, तो कहाँ से हम लोग डेटा ले रहे हैं, तो फ्रॉम कंपनी है, तो एज इसलिए यहाँ पे यूज होता है। जैसा उस टेबल में है वैसा ही मुझे चाहिए, बट मुझे इसी 3 कॉलम पे चाहिए। सेलेक्ट, जो कॉलम में सेलेक्ट कर रही हूँ, सेलेक्ट आईडी, नेम, एज। So it's a syntax for writing view. So create view, view name, as क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मुझे as it is चाहिए, जो वो टेबल जो मैं सेलेक्ट करूंगी ना फ्रॉम से, मुझे उसी की तरह चाहिए स्ट्रक्चर। Only we are filtering our data on based on some columns we are selecting. तो कौन कौन सा कॉलम हम सब सेलेक्ट करें अपने व्यू के लिए, देखो आईडी, नेम, एज, बस इतना ही। जबकि हमारे कंपनी टेबल में कितने हैं, एड्रेस भी थे, सैलरी भी थे, मुझे नहीं चाहिए। तो ये तो आपका तुम्हारा व्यू का सिंटेक्स हो गया। हाँ, तो पोस्ट के सिक्वल क्वेरी आता है। तो अब क्वेरीज अगर मैं बोलूँ तो क्वेरीज तो लिखना ही होता है, बहुत सारे तरीके से आप क्वेरीज लिख सकते हो। देन फर्स्ट इंसर्ट, हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया, तो टेबल we have created tables but we haven't inserted any record in it ना। तो अगर आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, कुछ भी एक भी एंट्री करना है ना, तो क्या होता है ना, पोस्ट के सिक्वल या कोई भी सिक्वल क्वेरी में इंसर्ट जो होता है ना, इंसर्ट टेक्स्ट जो होता है ना, उसके हेल्प से आप डेटा को इंसर्ट करते हो किसी टेबल में। तो देखो मैं इंसर्ट, अभी मैं आपको इंसर्ट करके दिखलाती हूँ। ये देखो, ये इंसर्ट का मैंने एक रिकॉर्ड उठाया, अभी मैंने कंपनी 1 बनाया था, तो मैं कंपनी 1 कर देती हूँ। इसका सिंटेक्स सिमिलर ही है ना माइस्क्यूएल के जैसे? हाँ, सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर है। इसका सिंटेक्स याद भी करना बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना होता है आपका। देखो यहाँ पे भी सिंटेक्स अगर इंसर्ट इनटू, मतलब क्या इनटू क्यों लिखा गया, अगर आप तरीके से समझ के जाओ तो कुछ कभी भी सिंटेक्स में भूल ही नहीं पाओगे। इंसर्ट तो क्योंकि आप इंसर्ट कर रहे हो डेटा, इनटू मतलब क्या, कहाँ। उसके बाद देखो आपने कंपनी 1 लिखा है, मतलब कंपनी 1 के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा, इसीलिए इनटू वहां लिखा हुआ है। तो आपको सिंटेक्स कभी भी पैनिक नहीं होना, कहीं पे भी आप क्लाइंट पे डिप्लॉय, कहीं पे भी कुछ हो, अरे इंसर्ट करने बोल दिया, अरे अब तो देखना पड़ेगा नेट से। नहीं, अगर ऐसे इस तरीके से आप याद करके रखोगे अपने दिमाग में सेट, तो कभी भी कोई सिंटेक्स भूल नहीं पाओगे। और 6, 10 या 12 सिंटेक्स होते हैं जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं टेस्टिंग, या फिर आपको कुछ क्वेरी करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स तो कुछ करते नहीं है। तो क्या होता है ना, इसीलिए इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट आपका कीवर्ड है, क्योंकि आप इंसर्ट कर रहे हो, यू आर इंसर्टिंग। इनटू मतलब क्या, कहाँ इंटर कर रहे हो, कंपनी 1 में इंटर कर रहे हो। एंड देन
अब देखो, अब बोलोगे कि ये सब क्यों है, तो ये सब कॉलम्स है, आप डेटा एंटर कर रहे हो, तो अब आप वैल्यू जब प्रोवाइड करोगे तो डेटाबेस कैसे समझेगा, 1 को कहीं पे भी डाल देगा। अगर आप नहीं कॉलम का नाम लिखोगे तो उसको नहीं समझेगा, कौन सा पॉल को डाल देगा आपका एड्रेस में, नेम में 32 डाल देगा, कैसे पता चलेगा। तो क्या था, हम लोग वी आर मेंटेनिंग सीक्वेंसेस। ओके, आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी है, ज्वाइन डेट है, जो भी है आपका यहाँ पे। तो क्या होता है, उसी तरह वैल्यू, फिर कुछ नहीं, आपने कॉलम का नाम लिखा, ब्रैकेट बंद किया, उसके बाद वैल्यूज क्यों, क्योंकि आप वैल्यूज इंटर कर रहे हो, आप डेटा इंटर कर रहे हो, इसलिए वैल्यूज लिख दिया और सारा डेटा यहाँ डाल दिया। तो देखो, मैं ज्वाइनिंग डेट तो मैंने लिख लिया नहीं था, तो भी मैं ज्वाइनिंग डेट हटा दूंगी यहाँ से, मेरे टेबल में ज्वाइनिंग डेट है नहीं, तो अब मैं डेट अगर कॉलम को हटाई तो इसी तरह मैं वैल्यूज भी यहाँ से हटा दूंगी। अभी मैंने इतना लिया है, अब मैं इसको रन कर देती हूँ। तो देखो, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब अगर मैं करूं, अब आप बोलोगे कि दिखाओ मुझे कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो कुछ नहीं करना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, तब आपको क्या, ओके, तो कुछ नहीं करना होता। जब आपको चाहिए कि डेटा कैसे देखे, तो कुछ नहीं करना होता, सेलेक्ट करो, सॉरी, स्टार करो, फ्रॉम करो, एंड देन टेबल नेम लिख दो। तो मेरा टेबल नेम है कंपनी 1, और फिर आप सेमीकोलन दे दो। सेमीकोलन क्यों देते हैं, क्योंकि आपको पता चले। अच्छा, अभी आप बोलोगे सेमीकोलन क्यों देता है, कि आपको पता चले, डेटाबेस को कैसे पता चला कि आपने लिखना खत्म कर दिया है। मान लो यहाँ मैं 4 क्वेरी लिख के रख दूं, इसके नीचे मैं और भी कुछ लिख दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दूसरा भी कुछ क्वेरी, या इतना ही करके छोड़ दूं, तो डेटाबेस को कैसे, डेटाबेस तो पूरा ले जाएगा। तो सेमीकोलन से क्या होता है ना, पता चलता है, अच्छा ये वाला जो है ना, ये क्वेरी यहीं पे खत्म हो रहा है, इसके नीचे को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो इसलिए सेमीकोलन यूज है। हर एक चीज का ना, कुछ भी क्वेरी में जब आप लिखते हो ना, तो हर एक किसी चीज का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे ही नहीं कि सेमीकोलन मन से हम लगा दे रहे, नहीं, रीजन होता है, वो टर्मिनेट हो रहा है वहां पे क्वेरी, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग सेमीकोलन। अब देखो, स्टार फ्रॉम हम कंपनी 1 अगर करें ना, तो देखो आपका ये रिकॉर्ड आ गया। अभी मैंने इंटर किया था ना, अभी आपके सामने 1 पॉल 32, जो भी आपका एज है, एड्रेस आपका कैलिफोर्निया होगा, सैलरी हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंसर्ट स्टेटमेंट। अब देखो, अपडेट हो गया। अपडेट मतलब क्या होता है, मान के चलो, मैं आपको बहुत पहले एग्जांपल, आई हैव गिवन एग्जांपल ना, कि मेरी सैलरी अपडेट हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो सैलरी इंक्रीज हो गई मतलब क्या, वो डेटा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं हूँ उस कंपनी में, तो मैं डेटाबेस में नेहा नाम की है एम्प्लॉय, बट मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई। तो अब क्या होगा, डेटाबेस को कैसे पता चलेगा, कि जब तक कि आप अपडेट नहीं करोगे अपने रिकॉर्ड को, कि नहीं तो फिर क्या होगा, वो गलत डेटा हमेशा आते रहेगा। अगर कोई भी वहां से डेटा ले तो क्या होगा, उसको मेरा पुराना सैलरी दिखेगा, नया सैलरी दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है ना, अपडेट यूज होता है। अगर आप नाम से ही देखो ना, तो आपको समझ में आएगा अपडेट क्यों, मतलब अपडेट मतलब कुछ रिकॉर्ड को हम अपडेट जरूर, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहे होंगे, तभी अपडेट यूज होता है। तो अपडेट का क्या सिंटेक्स होता है ना, देखो अपडेट यहाँ पे है, क्या होता है ना, अपडेट कंपनी। देखो अपडेट तो वर्ड, क्योंकि आप अपडेट कर रहे हो, कंपनी मतलब कि आपका टेबल नेम, जब मान के चलो हम कंपनी 1 में करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बोल रहा है कि सैलरी को सेट करो। सेट मतलब क्यों, क्योंकि अब सैलरी मेरा 10,000 तभी था, अभी 15,000 हो गया मान के चलो, तो अभी मेरी सैलरी क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सैलरी को वो सेट करने बोला, सिक्वल क्वेरी बोल रहा है कि उसके सैलरी को सेट करो, ठीक है। अब कहाँ सैलरी सेट करो, अब सैलरी 15,000 सबको कर देगा, अगर आप वेयर क्लाउज नहीं लिखोगे तो वो तो समझेगा ही नहीं, कर देगा, क्या करेगा, अगर आप बस इतना लिख के छोड़ो, अपडेट कंपनी सेट सैलरी इक्वल टू 15,000, तो इससे आपको क्या, मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि वो बोल रहा है कंपनी टेबल में जाके सैलरी को सेट कर दो 15,000, तो वो क्या करेगा, it will go to each and every rows and it will update salary to 15,000। तो ये तो गलत हो गया ना। तो क्या होगा, इसके लिए कि आपको नेहा मतलब मेरी ही सैलरी अपडेट उसको बस करनी है, तो वो क्या करेगा, अब मेरे नाम से भी अगर जाएगा तो नेहा 50 नेहा टीम कंप्यूटर्स में अगर होगी तो सबका सैलरी मान के चलो एक जैसा हो जाएगा, 15 15 15 15 15, वो भी गलत है। तो इसीलिए बोलते हैं कोई यूनिक रिकॉर्ड पे जाके हम करते, तो मेरा आईडी तो किसी के साथ मैच नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए लिखा वेयर आईडी इक्वल टू 3। मान लीजिए मेरा आईडी 1 है, तो वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा, बस वो जाएगा, सबसे पहले देखेगा, ओके ये बोल रहा है अपडेट कंपनी, जैसे ही डेटाबेस के बैकएंड में वो कंपनी टेबल को जाके हिट करेगा, फिर बोल रहा है ओके सेट सैलरी, मतलब वो सैलरी कॉलम को जाके हिट करेगा, उसके बाद देखिए अच्छा ये 15,000 बोल रहा है, ठीक है, वो फिर सोचेगा 15,000, बट फिर उसके आगे वेयर क्लाउज पे जाएगा, अच्छा ये तो आईडी जो है 3 के लिए ही बोल रहा है बस, तो 3 पे जाके अपडेट कर देगा वो। तो ये आपका हो गया अपडेट। देन डिलीट हो गया आपका। डिलीट मतलब कि अच्छा देखो, एक क्या होता है ना, डिलीट मतलब कि आप अगर कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो अपने टेबल से, अगर कोई एक एम्प्लॉय छोड़ गया तो उसके रिकॉर्ड को क्यों रखना अननेसेसरी, तो हम क्या होता है ना, उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। या फिर मान के चलो अभी अगर हम लोग शॉपिंग ही करते हैं, अगर मैं एक रेंट के हाउस पे रह रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मान के चलो HSR में रह रही हूँ, कल को दिन मैं व्हाइटफील्ड शिफ्ट हो गई, तो अभी क्या होगा, मैं मान के चलो अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह मेरा ये वाला एड्रेस एडेड है, अब मैं वहां शिफ्ट हो गई, तो वहां क्या होगा, मैं अपने एड्रेस को
को इसको डिलीट कर दूंगी और वहां पे जाके नया एड्रेस को ऐड कर दूंगी। तो क्या, तो इस एड्रेस को क्यों रखना, अगर मेरा ये परमानेंट एड्रेस था ही नहीं, अभी मैं यहाँ पे उसने इस एड्रेस को यूज कर रही हूँ ना, तो अब क्या करूंगी मैं, जाके जैसे ही मैं वहां पे डिलीट करूंगी और नया वाला ऐड करूंगी, तो अमेजोन के डेटाबेस या फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में क्या होगा, मेरा वो एड्रेस डिलीट हो जाएगा और नया वाला एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो क्या होगा, वो आपका डिलीशन इसी को बोलते हैं। मतलब क्या, मेरा पूरा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है, बट मेरा एक कंपोनेंट बस चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो अगर आप तरीके से देखो तो इसमें दो क्वेरी काम करे, एक तो डिलीट और दूसरा अपडेट। क्यों डिलीट, मतलब मेरा HSR का एड्रेस डिलीट हुआ, अपडेट मतलब मेरा वाइट फील्ड का एड्रेस, जो एड्रेस फील्ड जो है क्या हुआ, आपने एड्रेस को ऐड किया मतलब एड्रेस फील्ड अपडेट हुआ। तो ये डिलीट और अपडेट। एक चीज और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बोलोगे ड्रॉप भी तो वही काम करता है, डिलीट और ड्रॉप में फिर डिफरेंस क्या है? ड्रॉप में भी तुम बोलती थी टेबल डिलीट कर, टेबल को हटा देते हैं, तो फिर डिलीट क्यों आया? तो देखो ड्रॉप मतलब क्या होता है ना, ड्रॉप में मतलब आप पूरे टेबल को ही, मतलब मैं अपने अमेजोन से अपना अकाउंट ही अगर हटा लूं तो क्या होगा, मेरा हर कुछ वहां से हट जाएगा, मेरा नाम या जो भी मैंने डाल के रखा हुआ, अपना बैंक अकाउंट जो भी डाल के रखा है सब कुछ हट जाएगा। तो वो एक ड्रॉप हुआ। डिलीट मतलब क्या होता है ना, कि आप एक पर्टिकुलर अगर रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, अच्छा नहीं मुझे जो है इसी बंदे को हटाना है, तो उसका एक पर्टिकुलर आपने रिकॉर्ड। तो डिलीट मतलब क्या, अगर आप वेयर क्लाउज यूज करना चाहते हो ना, जैसे लिखते हैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इक्वल टू 3, या डिलीट एम्प्लॉय फ्रॉम या डिलीट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इक्वल टू 3, तो क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड हट जाएगा, बट वो टेबल तो रह जाएगा ना, बस मैं हट जाऊंगी वहां से। तो डिलीट मतलब ये होता है, मतलब वेयर हम यूज कर फिल्टर करते हैं हम रिजल्ट को, हमें कुछ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर हटाना, देन वी आर गोइंग फॉर डिलीट। बट ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप में आप पूरा ड्रॉप ही टेबल ही ड्रॉप कर देते हो, मतलब कि वो आप सब कुछ ही हटा दे रहे हो। आपको टैब्लो का कोई पीपल ही नहीं चाहिए तो पूरा टैब्लो ही हटा दिया आप। अगर आपको मैं नहीं चाहिए तो मैं मुझे आप हटाओगे तो मैं डिलीट, आप अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर दोगे। ड्रॉप मतलब आप पूरा टेबल ही हटा देते हो। तो डिलीट और ड्रॉप में ये डिफरेंस होता है। और एक चीज होता है, ड्रॉप जो होता है ना वो DML होता है। अगर DML मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये क्या होता है ना DML टाइप होता है। मतलब जैसे आप सोचो ना DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन, तो आप क्या कर रहे हो ना, मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा में मैनिपुलेशन ही तो कर रहे हो, आप डिलीट कर रहे हो रिकॉर्ड को, तो क्या हुआ, डेटा मैनिपुलेट हुआ, डेटा हटा कुछ वहां से, तो ये DML होता है। और जो ड्रॉप होता है वो DCL होता है, डेटा DDL होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। तो क्या, हाँ मैम, Neha, how long it will take now? मैम 5 मिनट में बस खत्म हो जाएगा मैम। अब Okay, you have ठीक। to let it go because it's already 10:08, so almost. ठीक है मैम, मैं जल्दी अब कवर कर देती हूँ। ओके, तो वो हो गया आपका DDL और सॉरी वो हो गया आपका ड्रॉप एंड डिलीट का डिफरेंस। डिलीट मतलब व्हेन यू आर डिलीटिंग समथिंग फ्रॉम योर टेबल, ओनली रिकॉर्ड यू आर डिलीटिंग, तो डिलीट होता है। और ड्रॉप मतलब आप पूरा अगर डिलीट हटाना चाहते हो मतलब पूरा टेबल ही, तो वो ड्रॉप होता है। और डिफरेंस क्या होता है, डिलीट में आप वेयर क्लाउज में डिलीट को यूज कर सकते हो, बट ड्रॉप के केस में आप वेयर क्लाउज नहीं यूज कर सकते हो। देन अगेन क्या होता है, डिफरेंस एक होता है डिलीट जो होता है वो DML होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है, बट डिलीट ड्रॉप जो होता है वो DDL होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। अच्छा देखो, अब क्या होता है ना, क्लाउजेस पे आते हैं। अब आप बोलोगे क्लाउजेस क्या होता है नेहा, तो क्लाउजेस क्या होता है ना, जब आप कोई वेयर क्लाउज यूज, जो भी आपने फिल्टर करने के लिए रिजल्ट यूज करते हो ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर, या फ्रॉम भी यूज कर रहे हो, या ग्रुप बाय यूज कर, या ऑर्डर बाय, या हैविंग, तब क्या होता है ना, ये सब क्लाउजेस होते हैं। अब आप बोलोगे वेयर, तो आपको पता ही है क्यों यूज करते हैं, व्हेन वी वांट टू फिल्टर आउट आवर रिजल्ट देन वी गो फॉर वेयर क्लाउजेस। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू, या सेलेक्ट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू IT, तो क्या होगा आपका, आपने क्या हो पूरा डेटा सेट से एक रिजल्ट को फिल्टर आउट कर दिया वेयर को यूज करके। देन फ्रॉम क्या होता है, आप फ्रॉम यूज करके टेबल के नाम को स्पेसिफाई करते हो। अगर फ्रॉम नहीं रहेगा तो आप क्या, सेलेक्ट स्टार टेबल, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो सुनने में भी खराब लग रहा है। तो फ्रॉम इसलिए हम यूज करते हैं। ग्रुप बाय मतलब क्या होता है, देखो ग्रुप बाय में अगर आप बोलोगे नहीं ग्रुप बाय क्या होता है, तो ग्रुप बाय क्या होता है ना, आप अगर चाहते हो, अगर आपको बोला जाए कि ठीक है मुझे ना मुझे साउथ रीजन का बस एम्प्लॉय चाहिए, साउथ रीजन को आप साउथ डाल के मुझे एम्प्लॉय को दिखलाओ, या फिर मुझे ये दिखलाओ कि जो ये एम्प्लॉय किस किस डिपार्टमेंट में काम करता है। मान के चलो मैं एक हूँ, मैं मान के चलो दूसरे टेक्नोलॉजी में काम करती, चलो टैलेंट में काम किया, टैब्लो में काम किया, क्लिक में काम किया, MySQL में काम किया। तो अब आपको चाहिए कि नेहा किस किस जगह पे काम करती है, तो कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे अगर आप निकालोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो ठीक है
अब आप सर्च करते रहो ना, 1000 रिकॉर्ड है तो नेहा, ओके यहाँ पे आपको फर्स्ट रो में नेहा दिखेगी, हो सकता है फिर हजार वाले रो में नेहा दिखे, अच्छा वहां पे क्लिक में भी ये काम करती है, फिर हो सकता है आपको 10,000 रो में जाके दिखे, अच्छा ये तो टैलेंट में भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए ग्रुप बाय होता है, मतलब कि आप मेरे नाम पे ग्रुप बाय कर दो ना, तो आपको पता चल जाएगा, मेरे रेलिवेंट सारा डेटा आपको आ जाएगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप बाय नेम, या फिर आप कुछ ऐसा अगर आप चाहते हो कर दो, तो आपका डेटा जब आप एग्रीगेट फॉर्म में डेटा को चाहते हो ना, तो हम लोग ग्रुप बाय यूज करते हैं। ऑर्डर बाय मतलब जब आप सॉर्टिंग चाहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ये होता है ना, तो ऑर्डर बाय यूज करते हैं। अभी आपको चाहिए कि किसका हाईएस्ट सैलरी है, आपको देखना है, तो कैसे, अगर अभी चाहिए हाईएस्ट, कैसे देखोगे? डेटा तो सॉर्टेड नहीं है आपके टेबल में, तो आप ऑर्डर बाय क्या करो, डिसेंडिंग कर दोगे। तो डिसेंडिंग कर दोगे किस बेसिस पे? ठीक है, अगर आप ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिख दोगे तो वो कौन से कॉलम पे डिसेंडिंग डालेगा? तो इसीलिए ऑर्डर बाय के साथ कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। ओके, मैं सैलरी पे चाहती हूँ मुझे डिसेंडिंग, नहीं मैं नेम पे चाहती हूँ, ताकि मैं फिल्टर आउट कर सकूं ए नाम से कौन कौन प्रेजेंट है। फिर क्या होता है ना, फिर हैविंग आता है। अच्छा, अब पूछोगे हैविंग क्या होता है नेहा? तो हैविंग क्या होता है ना, कि अगर आप देखो, अभी मैं बोलूँ ना कि आप वेयर क्लाउज कब यूज कर सकते हो, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वेयर आईडी इक्वल टू 1। अगर आपको एग्रीगेशन चाहिए तो आप वेयर नहीं यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए, अच्छा मुझे ऐसा टेबल में ऐसा एम्प्लॉय का नाम निकालो जो कि 5 बार प्रेजेंट है, मान जो नेहा ही 5 बार प्रेजेंट है, आपको उसी का डिटेल चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वेयर आईडी इक्वल टू 5, तो क्या होगा, तो आपको 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे, है ना। मैं अगर 5 बार प्रेजेंट हूं तो 5 तो रिकॉर्ड आ जाए, वो नहीं चाहिए आपको। क्या चाहिए? जिसका आपको बस नाम चाहिए, तो क्या करोगे, तब हम लोग हैविंग क्लाउज का यूज करते हैं। जब आपको एग्रीगेशन चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल हैविंग काउंट ऑफ नेम ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो क्या होगा, जब आपको देखो आपने क्या किया, हैविंग के बाद काउंट लगाया या फिर मीन लगाया या फिर मैक्स लगाया, जो भी आप एग्रीगेशन यूज करना चाहते हो, अगर आप अपने कंडीशन में इफ यू वांट टू यूज एग्रीगेशन इन योर कंडीशन सेट ना, तो हम लोग हैविंग के लिए जाते हैं, तब आप वेयर के लिए नहीं जा सकते हो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। वेयर कब यूज करते हैं, जब हमें एग्रीगेशन नहीं चाहिए होता है कंडीशन पे। हैविंग मतलब जैसे ही आपको कोई बोल दे, अच्छा ठीक है हमको चाहिए जिसका जो इस बार इस मंथ में 15 दिन प्रेजेंट रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके अटेंडेंस को जाके काउंट करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 करोगे। वो आप वेयर से थोड़ी कर सकते हो, उसकी जगह पे आपको हैविंग चाहिए, तो ये आपका हैविंग क्लाउज हो गया। देन लास्ट आता है ज्वाइंस आता है। तो ज्वाइंस आप लोगों को पता ही है, ज्वाइंस हम लोग क्यों करते हैं, जब अगर हमें इफ वी हैव मल्टीपल टेबल्स एंड इफ यू वांट आवर डेटा इनटू अ वन सिंगल टेबल on the basis of certain condition, certain filters, then we are going for join. तो join बहुत different तरीके का होता है। inner join होता है left, right, cross and full join. inner join क्या होता है ना, inner join मतलब क्या होता है कि आपको बस जब अगर कॉमन डेटा चाहिए, टेबल 1 मान के चलो एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, आपको बस वही डेटा चाहिए जो एम्प्लॉय, मान के चलो कोई 3-4 एम्प्लॉय एडेड हुए उसका डिपार्टमेंट, अब हमने तो ले लिया, कंपनी तो ले लिया है, बट डिपार्टमेंट अब तक नहीं सोच पाया किस डिपार्टमेंट में इसको प्लेस करूं या किस टेक्नोलॉजी में इसको डालूं, नहीं सोच पा रहा है, तो क्या होगा, तो वो तो आपका टेबल एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है बट डिपार्टमेंट में है ही नहीं वो एम्प्लॉय। तो अगर आपको बस कॉमन रिजल्ट चाहिए कि हाँ जो एम्प्लॉय में भी है और डिपार्टमेंट में भी है, देन वी विल गो फॉर इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब इट विल गिव यू द सबसेट ऑफ 2 or more different tables। तो क्या होता है, इनर ज्वाइन आप करते जब हो तो क्या होता है, टेबल 1 और टेबल 2 को इनर ज्वाइन करते हो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लिंकिंग फील्ड। अब ऐसा नहीं है कि टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 लिख दिया, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लिंकिंग फील्ड हमें लिखना पड़ता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या सेलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 on मतलब कि on एक कीवर्ड है, on the basis of what, on the basis of certain columns, table 1.id equal to table 2.id। बस हो गया, समझ गया इस इक्वल के, अच्छा ये चाह रहा है इस दोनों टेबल का ज्वाइन, वो भी इनर ज्वाइन ही चाह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी कॉलम, तो ये आपका इनर ज्वाइन हो गया। लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या होता है ना कि लेफ्ट, अगर आपका 2 टेबल्स प्रेजेंट है तो दोनों टेबल का कॉमन प्लस लेफ्ट का एक्स्ट्रा, नाम ही से समझ जाओ लेफ्ट ज्वाइन मतलब, जो मैं बोली ना कि अगर दोनों टेबल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में जो कॉमन डेटा प्रेजेंट है प्लस लेफ्ट में जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, जो मैंने बोला ना जिसको डिपार्टमेंट अभी असाइन ही नहीं हुआ, तो लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन प्लस जो एक्स्ट्रा मेंबर प्रेजेंट है ना जिसको डिपार्टमेंट अब तक भी असाइन नहीं हुआ, वो भी आपके आ जाएंगे लेफ्ट ज्वाइन में। राइट ज्वाइन मतलब कि दोनों का कॉमन प्लस राइट का एक्स्ट्रा, अब जो लेफ्ट में जो एक्स्ट्रा था ना जिसको डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ था, वो आपके रिजल्ट सेट में नहीं आएगा राइट ज्वाइन में। दोनों का कॉमन प्लस राइट में ऐसा कोई होगा जो कि डिपार्टमेंट में होगा बट उसका एंट्री एम्प्लॉय टेबल में नहीं होके रह गया है, तो वो हो जाएगा आपका राइट ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन मतलब कि आप अगर चाहते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर इधर आपका 10 है इधर आपका 5 है मान के चलो, तो क्या होता है ना, क्रॉस ज्वाइन वो होता है कि आप
सारा डेटा चाहते हो तो आपका वो क्रॉस ज्वाइन हो गया। n इंटू m होता है ना, तो वो क्रॉस ज्वाइन होता है। अगर आपका यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है तो क्या होगा ना, पहला रो जो होगा वो पांचों से जाके पहले ज्वाइन करेगा। ओके, फर्स्ट रो सेकंड टेबल का फर्स्ट रो से जाएगा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट टेबल का सेकंड रो जाएगा सेकंड टेबल का, फिर फर्स्ट रो थर्ड रो जाएगा सेकंड टेबल का। तो क्या होगा, एक रो यहाँ से उठ के जाएगा और सारे से मैच करेगा सेकंड टेबल से, तो वो आपका क्रॉस ज्वाइन हो गया। और फुल ज्वाइन मतलब, क्रॉस ज्वाइन और फुल ज्वाइन लगभग सेम ही होता है। फुल ज्वाइन मतलब होता है कि आपका मान लो इधर 10 रिकॉर्ड है और इधर 10 रिकॉर्ड है, आपको 100 रिकॉर्ड सब कुछ चाहिए, तो क्या होता है ना कि वो फुल ज्वाइन हो जाता है। आपका टोटल 10 इंटू 10 100 रिकॉर्ड्स आ जाएगा, तो ये आपका ज्वाइंस हो जाता है। देखो हाँ, सेलेक्ट, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ ज्वाइन का। देखो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, फ्रॉम, कंपनी होता है, जो कि आप जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है आप कॉमा कॉमा देके लिख दोगे। फ्रॉम आप अपने टेबल का नाम लिखोगे, फिर मैं इनर ज्वाइन लिखो, कौन सा ज्वाइन करना चाहते हो, डेटाबेस कैसे समझेगा, तो यहाँ ज्वाइन टाइप दोगे एंड देन फिर दूसरा टेबल का नाम लिखोगे। ऑन मतलब क्यों, मतलब किस पर करना चाह रहे हो ज्वाइन, कौन से कॉलम पे, तो ऑन। फिर क्या होता है ना, कंपनी डॉट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम आईडी जो है ये कंपनी टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कंपनी का मतलब जो टेबल का नेम डॉट प्लस जो आपका कॉलम है, इसलिए यहाँ पे डॉट यूज होता है। टेबल का नेम डॉट वो कॉलम इक्वल टू डिपार्टमेंट, फिर से टेबल का नाम डॉट एम्प्लॉय आईडी, वहां पे आईडी यहाँ पे जो आईडी फील्ड प्रेजेंट है कंपनी में, डिपार्टमेंट में वही एम्प्लॉय आईडी के नाम से प्रेजेंट है, तो इस पे ज्वाइन हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, टाइम बहुत एक्सीड कर गया एक्चुअली।